the design of cooling tower. In the previous term, we have discussed the general correlate, general fundamental relationship which is used in the adiabatic operation for gas liquid system. So last time we have discussed this. This is a simple uh, tower where the fluid is, any fluid means gas vapors moving upward and liquid is falling downward, and these two are comes in a contact and exchanging the heat as well as a mass with them. And during this operation, uh, the heat and mass transfer in the here we have considered the vapor from the vapor gas mixture is transferred to the liquid side. Yani कि this is a this figure actually represent the this figure gives the idea. This is a two different phase. This side is a liquids and this side is a vapor gas mixture. Hmm. So this side a vapor gas mixture and the fluid. Fluid means yani liquid, yani vapor will transfer from this vapor gas mixture to the liquid side through this interface. This line represent the interface. And in this operation, mass transfer as well as heat transfer. Well, this is a simultaneous heat and mass transfer operation. This will carry it out. The last time we have already discussed this whole thing, and we have derived this condition, yani this conditions, yani this equation. This equation is simple equation, yani this is writing for the heat balance, yani enthalpy balance equation है this is, and the enthalpy balance over this whole envelope, yani this complete envelope, writing the enthalpy balance over this envelope. And previous time we have discussed ki first we have write the enthalpy balance for this envelope. This is known as the first envelope, है ना. तो enthalpy balance की कितनी heat आई, कितनी गई और कितनी remove हो गई, and then we have also written the enthalpy balance for the second envelope. This envelope, yani this envelope is second envelope. So we are writing the enthalpy balance for this also, and then for overall enthalpy balance for this whole envelope. And this process is carried out within this tower. So this is a part of yani differential part of this tower where we writing down the enthalpy balance. Therefore, we will get the equation in differential form. Because we have taken the differential section of this tower and we get the equation in terms of differential term. Therefore, this equation is written. ये क्या है? This is enthalpy change in the liquid, है ना? And this is the enthalpy which is changes in the vapor gas mixture, है ना? तो vapor gas mixture में this enthalpy जो है this is गैस में, क्योंकि this part minus sign of this represent कि enthalpy this much amount of enthalpy is transferred to the liquid, इसलिए ये माइनस साइन के साथ है. And this is the enthalpy of the vapor gas mixture. ये है these two are the sensible enthalpy, क्योंकि this is written in temperature difference term. This means this is sensible enthalpy and this is a enthalpy या latent heat of vaporization, यानी कि जो भी enthalpy due to the latent heat है वो this is. So this is for the gas side, यानी vapor gas mixture side, and this is for the liquid side enthalpy. So this equation we will get after some arrangement. तो ये this equation we will get, and this equation क्योंकि this is valid for the adiabatic operations and a vapor gas mixture system. तो first case है cooling tower design, यानी cooling of air, cooling of water with air,
है ना, कूलिंग टावर डिजाइन में, क्योंकि कूलिंग टावर में वी आर कूल डाउन द लिक्विड यानी वाटर with the help of air. The first one is a water cooling with air. This is the most important operations occur in the process industry. Here the warm water which is collected from different equipment. जैसे for example heat exchanger, condenser, vaporizer, then HRU units, जितने heat recovery units, तो वहां से जितना भी water, warm water we have collected, these water is sent to the cooling tower where this is cooled with the contact of atmospheric air, and this is again reuse in these equipments. तो in this operation होगा क्या, the latent ये this is known कि the latent heat of water is so large, तो small amount of evaporation produce large cooling effect. This evaporation is occur when air is passed over this water. तो क्या होगा, some amount of water is vaporized and goes to the air. तो during this process क्या होगा, क्योंकि जो वेपराइजेशन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यानी वो दिस इज नोन एज अ लेटेंट हीट, दिस इज ट्रांसफर्ड कर, क्योंकि दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू वेपराइज द लिक्विड फ्रॉम लिक्विड टू वेपर यानी वेपर गैस मिक्सचर। तो यानी जितना अमाउंट वेपर गैस मिक्सचर में जाएगा वो, यानी वेपर गैस मिक्सचर का मतलब हो गया एयर में, क्योंकि एयर इज, ऐसा तो होगा नहीं कि एयर इज कंप्लीटली डीह्यूमिडिफाइड, क्योंकि एयर इज ह्यूमिडिफाइड ही एयर होगी, क्योंकि इन द एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिफाइड एयर इज प्रेजेंट, तो इसलिए वेपर गैस मिक्सचर यानी एयर इज अ वेपर गैस मिक्सचर होगा, और इसमें जितना अमाउंट ऑफ वेपर जाएगा तो वो उसके कारण, तो वो एनर्जी जो लॉस होगी इन लिक्विड की यानी वाटर की, तो वो लेटेंट हीट के बराबर, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए टेम्परेचर of the liquid will drop too much, तो इसीलिए large cooling effect we will gain. So for air water system, Lewis relationship applies reasonably well because mass transfer rate and temperature level is, this case is too low. तो Lewis relationship जो हमने previously we have discussed कि in this case Lewis value यानी Lewis number is 1, है ना, ये 1 होगा, ठीक है, for air water system. So the previous equation we have discussed for adiabatic operation can be used by some reasonable approximation, यानी कि we ignore the sensible heat term, क्योंकि sensible heat term is a very small amount compared to the latent heat. इस terms के compare में these term is very less, इसलिए this whole term is very short, यानी ignored in the equation, and we get this expression simply, यानी enthalpy of liquid वो भी डिफरेंशियल टर्म में कि टावर का, कूलिंग टावर का सम पार्ट वी हैव टेकन, और उस पार्ट में दिस डिफरेंशियल पार्ट, एंड हेयर द एंथैल्पी चेंज इन द लिक्विड वो ये लिखी हुई है, एंड एंथैल्पी चेंज इन द एयर, तो ये है एयर यानी वेपर गैस मिक्सचर के लिए, तो दिस मच यू कैन राइट दिस एज दिस ऑल्सो, क्योंकि ऑलरेडी वी नोज कि जो एंथैल्पी होती है for the vapor gas mixture, this can be written as CS, है ना, temperature difference, है ना, this temperature difference plus lambda naught, lambda naught, this is, so this is the enthalpy, and the CS is the, yani this represent the CB, CB stand for the gas, है ना, gas, and CA stand for the liquid, and this is specific enthalpy, and these are the, and this is specific enthalpy of the gas, and this is specific enthalpy of the liquid, and this is CB delta T and CAY delta T, and here the multiply of humidity change जो भी है y, ये delta T है ना, ये, तो this is CS, तो CB delta T plus CA delta T वो delta y,
तो यू कैन, तो इसको वी कैन सिंप्लीफाई और फॉर्म में, तो यू कैन राइट दिस GS डैश DH. Then integrating this equation with assumptions कि L dash means liquid flow rate, जो भी है liquid which is यानी falling in the cooling tower is essentially constant. क्योंकि essentially constant क्योंकि some of the liquid is vaporized to the atmosphere, तो उसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं कि वेपराइजेशन की नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो थोड़ा बहुत वेपराइजेशन से दिस डजंट मेक कि वैरी होगा. वैसे भी वी यूज द मेकअप वाटर फॉर द कूलिंग वाटर, नहीं तो अगर ज्यादा वो चेंज हो जाएगा तो फिर हमारी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए एल डैश को मेकअप कर दिया जाता है. तो एल डैश इज एसेंशियली कंसीडर एज ए कांस्टेंट. जब यू कैन कंसीडर एज ए कांस्टेंट, तो टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इंटीग्रेशन में दीज टर्म्स टेक आउटसाइड, है ना. तो these terms take outside यानी these ये term take outside and then integrate. Similarly here, so you can get this equation. Then this enthalpy balance, this can be represented graphically by plotting the gas enthalpy against the temperature, liquid temperature. तो ये gas enthalpy है in the y-axis and liquid temperature in the x-axis. तो we are plotting this. तो ये क्या है? This is, देखो this is, क्योंकि this is temperature difference and this is enthalpy difference. तो we are plotting the graph between enthalpy versus temperature difference. तो this equation जो है this is represent the straight line equation, है ना. क्योंकि सिंपल straight line equation लिखी हुई है, तो ये this is straight line equation. तो ये है equation, this ON, this line, ये जो line है this represent this equation, and this equation is known as a operating line. ये operating line है, this is, and this their slope is, slope क्या होगी इस operating line की? तो ये ऑपरेटिंग लाइन की स्लोप हो जाएगी LCAL अपॉन GS. जैसे y इक्वल टू mx, यू नो द रिलेशनशिप, है ना. तो यहाँ पे क्योंकि H इज रिटन इन, क्योंकि एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसलिए ये y को मान लो, है ना, और ये x हो गया सिंपलरली. तो ये जब उस टाइप से अरेंज करेंगे यू कैन इक्वेशन इन दिस फॉर्म y इक्वल टू mx फॉर्म में, तो m जो होगा m इज L डैश CAL अपॉन GS डैश, यानी कि H2 माइनस H1 इक्वल टू L dash CAL upon GS dash within bracket TL2 minus TL1. TL2 minus TL1 यानी these are the temperature at the inlet and outlet of the liquid, and these are the enthalpy of the vapor gas mixture at inlet and outlet to the tower. तो ये this is represented the operating line, मतलब this equation represent the operating line of slope of this. तो ON जो है इक्वेशन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ऑपरेटिंग लाइन को. एंड द पॉइंट, ये जो है पॉइंट O एंड N, दीज टू आर द टर्मिनल पॉइंट, और जो उसकी इस पॉइंट पे टेम्परेचर एट दिस पॉइंट TL1 एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंथैल्पीज H1 dash, and here this is second point, तो T temperature is TL2 and the enthalpy corresponding H2 dash. ठीक है, तो ये एंथैल्पी ऑफ दिस, एंड this line we can make, and this we can make with the help of the vapor gas mixture data. तो वो क्या है? दिस इज इक्विलिब्रियम लाइन है, दिस इज इक्विलिब्रियम लाइन. तो इक्विलिब्रियम लाइन कैसे? इक्विलिब्रियम लाइन जो ये कर्व है, दिस इज कैन बी प्लॉटेड फॉर कंडीशन ऑफ गैस, है ना, फॉर द कंडीशन ऑफ गैस एट द गैस लिक्विड इंटरफेस. तो कंडीशन ऑफ गैस, क्योंकि ये दिस इज इक्विलिब्रियम लाइन, तो इक्विलिब्रियम लाइन जो हो गई, वो जो कंडीशन होगी इंटरफेस पे, टेम्परेचर की कंडीशन जो होगी, उस टेम्परेचर कंडीशन पे जो एंथैल्पी होगी, यानी एंथैल्पी इस पॉइंट पे, तो वो उस टेम्परेचर पे जो एंथैल्पी होगी उसके करस्पॉन्डिंग ये प्लॉट कर देंगे, एंथैल्पी वर्सेस टेम्परेचर.
तो यानी कि एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड गैस एट ईच टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पे सैचुरेटेड एंथैल्पी जो होगी इन इंटरफेस पे, है ना। जैसे मान लेते हैं दिस इज टेम्परेचर, सम टेम्परेचर 30, इस टेम्परेचर पे इंटरफेस पे जो सैचुरेटेड एंथैल्पी, सैचुरेटेड जब गैस होगी एट दिस इंटरफेस, उस पे टाइम पे जो एंथैल्पी होगी, दिस इज एंथैल्पी एट इक्विलिब्रियम होगी, तो वो ये, ठीक है। तो उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे यू कैन फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम एंथैल्पी, और वो प्लॉट कर दीजिए तो यू विल गेट द इक्विलिब्रियम कर्व। देन ये लिक्विड टेम्परेचर, लिक्विड फ्लो रेट का जो डिफरेंस, यानी कि L2 माइनस L1 जो हम यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि L को हम कंसीडर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वॉट एवर चेंज इन द लिक्विड, क्योंकि लिक्विड इज फॉलिंग फ्रॉम in the tower from top to bottom. During this process, क्योंकि some of the liquid will vaporize with the air, एयर से वेपराइज हो जाएगा जो एयर पास होगी, लेकिन ये जो डिफरेंस होगा, यानी कि दिस L1 डैश एंड L2 डैश जो डिफरेंस होगा, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। ये डिफरेंस क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इज वेपराइज विद द एयर, तो इसलिए दिस डिफरेंस इज ऑलमोस्ट negligible, therefore we have considered कि L dash is a constant। अगर यही होगा तभी दिस ऑपरेटिंग लाइन जो है ये स्ट्रेट होगी, है ना। अगर ये L, ये डिफरेंस इज ए लार्जर, देन दिस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन को हमने प्लॉट किया है, दिस डजंट दिस डजंट ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, देन दिस में बी कर्व, तब कर्व टाइप की होगा, ये डिफरेंस लार्ज होगा। If the mass transfer rate is small, then this gs dash dy dash, ये we can write as a ky am y1 dash minus y dash and dz। देखो am is a interfacial surface area है, and this is am, when am तब लिखेंगे क्योंकि this is interfacial surface area for mass transfer, है ना। क्योंकि मास ट्रांसफर के लिए जो इसमें मतलब इन दिस टावर देयर इज अ पैकिंग, पैकिंग क्या, जैसे कूलिंग टावर में देयर इज ए पैकिंग ऑफ, जैसे आपने देखा होगा दिस हनी कॉम फिल्टर, हनी कॉम फिल्टर विच आर यूज्ड इन द डेजर्ट कूलर, तो सेम टाइप ऑफ पैकिंग इज यूज्ड, यानी सिमिलर टाइप ऑफ पैकिंग आर यूज्ड इन द कूलिंग टावर, यानी दिस विल बी प्रोवाइडेड टू increase the इंटरफेशियल एरिया, यानी कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन द एयर एंड वाटर, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए किया था। तो ये मास ट्रांसफर में दिस इंटरफेशियल एरिया इज डिफरेंट कंपेयर टू द हीट ट्रांसफर, है ना। क्योंकि हीट ट्रांस मास ट्रांसफर में जितना पार्ट, जैसे वाटर इज फॉलिंग ऑन दिस पैकिंग, तो जितना पार्ट वेट होगा उतने पार्ट से ही एयर कांटेक्ट में होगी, और जो रिमेनिंग पार्ट ड्राई होगा उससे कांटेक्ट नहीं होगा, इसलिए इंटरफेशियल एरिया अवेलेबल फॉर मास ट्रांसफर इज लोअर देन द इंटरफेशियल एरिया अवेलेबल फॉर हीट ट्रांसफर, क्योंकि हीट ट्रांसफर में एरिया ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना वेट है वो तो ठीक है, उतना तो है ही, जितना ड्राई है वो भी हीट ट्रांसफर में टेक पार्ट्स, क्योंकि वहां पे कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो जाएगा, और कन्वेक्शन यानी इन द गैस पे वेपर गैस मिक्सचर में होगा एंड इन द लिक्विड, तो दोनों केस में वहां पे हीट ट्रांसफर एरिया इज हायर कंपेयर टू द यानी इंटरफेशियल surface area which is available for mass transfer is lower compared to the heat transfer। तो ये जब इक्वेशन वी आर राइटिंग फॉर द हीट ट्रांसफर केस, तो ये दिस इक्वेशन जी एस सी एस डी टी जी वी कैन राइट एज एच जी एच टी आई माइनस टी जी। अब देखो दिस इज रिटर्न फॉर मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर में यानी कि एट द इंटरफेस, है ना, एट द इंटरफेस वी हैव रिटर्न कि जितनी भी मास ट्रांसफर हुआ, मास ट्रांसफर फ्रॉम द बल्क वेपर गैस मिक्सचर से, यहाँ से ये है वेपर गैस मिक्सचर, यानी कि हम वेपर गैस मिक्सचर मतलब यहाँ हमारे केस में हो गया कूलिंग टावर में एयर, एंड दिस साइड इज अ वाटर। तो यहाँ से यहाँ तक जितना मास ट्रांसफर हुआ इंटरफेस पे, तो वो ये है ड्राइविंग फोर्स, यानी ह्यूमिडिटी के टर्म में वाई आई डैश
माइनस वाई आई डैश इज द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर जो भी होगी, और ये जो ह्यूमिडिटी है एट द इंटरफेस, वाई आई डैश। एंड सिमिलरली फॉर हीट ट्रांसफर, ये दिस इज टेम्परेचर एट द इंटरफेस टी आई, है ना, एंड यहाँ पे टेम्परेचर टी जी। तो ये ड्राइविंग फोर्स हो गया हीट ट्रांसफर के लिए। तो ये तो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, वो भी इन टर्म्स ऑफ in terms of humidity, and here the heat transfer coefficient for the gas side। तो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देन व्हेन द सेंसिबल हीट ऑफ द ट्रांसफर वेपर इज इग्नोर्ड, तो हम जो ये एंथैल्पी लिखी हुई है, दिस एंथैल्पी, देखो ये तो हमने अभी लिख दिया पूरे टावर के लिए, लेकिन व्हेन वी आर राइटिंग फॉर द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, तो उस क्यों डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, क्योंकि व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट द हाइट ऑफ द टावर, तो वी टेक ए सिंपल डिफरेंशियल सेक्शन, एंड दिस डिफरेंशियल सेक्शन इज सॉल्व फॉर होल टावर। जैसे ये तो टोटल टावर के लिए हमने कल वो निकाल लिया, दिस इज फॉर द ऑपरेटिंग लाइन और ये सब, लेकिन इंटर इससे यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट कंडीशन, लेकिन जो इंटरनल कितनी हाइट चाहिए टावर की, वो सब के लिए यू कैन टेक अ डिफरेंशियल सेक्शन एंड देन इंटीग्रेट। तो इसीलिए उस, तो ये जो एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड चेंज हुआ है, वो एंथैल्पी यू कैन राइट एज एच एल ए एच टी एल माइनस टी आई। अब ये क्या एंथैल्पी, क्योंकि लिक्विड साइड में जितना चेंज हुआ है, तो यानी कि जो इंटरफेस से ये इस दिस साइड इज एयर एंड दिस साइड इज अ वाटर, तो जो एंथैल्पी विच इज ट्रांसफर टू द ए इंटरफेस टू द वाटर, क्योंकि हम है ना, तो वो ये है एंथैल्पी। या तो एच एल ए एस टी एल माइनस टी एल इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड टी आई इज द टेम्परेचर एट द इंटरफेस। तो ये जो एंथैल्पी इतनी चेंज हो गई, substituting all these values in the above equation, वहां पे इसको पुट कर दीजिए। वहां पे पुट करेंगे पहले, उससे पहले ये जो, क्योंकि ये दिस टर्म इज इक्वल टू एल सी एल डी टी एल इज इक्वल टू द जी एस डैश सर रोल नंबर 219 को ऐड कर लीजिए। तो ये फिर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज टू द प्रीवियस इक्वेशन, उससे पहले जो जी एस डैश डी एच, वी कैन राइट दिस ऑल्सो in terms of this, क्योंकि ये GS dash एंथैल्पी चेंज इन द वेपर गैस मिक्सचर, यानी इन द एयर जो भी है एंथैल्पी चेंज, दिस इज एंथैल्पी चेंज जो भी होगी, ये जो भी जा रही है यहाँ से एयर से इंटरफेस पे, दिस एंथैल्पी, दिस एंथैल्पी which is transfer from bulk air to the interface, and this is enthalpy which is ड्यू टू द वेपराइजेशन, ड्यू टू द इवोपरेशन ऑफ लिक्विड जो भी क्या वो, क्योंकि लैम्डा वी हैव टेकन है, तो ये जो ये मास ट्रांसफर के कारण हो रही है, देखो दिस इज मास ट्रांसफर, इट दिस अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर टू ओ मतलब टू दिस इंटरफेस मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट। तो ये बता रहा है एंथैल्पी विच इज यूज फॉर वेपराइजेशन पर्पस, है ना, तो वो अमाउंट ये हो गई। तो टोटल एंथैल्पी जो हमारी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द वेपर गैस मिक्सचर यानी एयर से, वो ये है, तो ये एंथैल्पी, ठीक है। अब पुट दीज वैल्यूज, यानी एल ए सी एल डी टी एल की वैल्यू इन द अब इक्वेशन, प्रीवियस जो इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन में, है ना, यहाँ पे यू कैन पुट एल ए सी एल की वैल्यू, एंड सिमिलरली यू कैन पुट जी एस डी एच वैल्यू, ये पुट कर दीजिए एंड द इक्वेशन, है। और पुट करने के बाद उसको और सिंप्लीफाई उन्होंने कर दिया कि दे हैव सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, या तो पुट कर लीजिए देन सिंप्लीफाई करिए, अदरवाइज अगर फर्स्ट सिंप्लीफाई अगेन दे हैव सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, कि उन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया एच जी ए एच मल्टीप्लाई बाई दिस, इस
होल इक्वेशन को डिवाइड बाय द सी एस के वाई ए एम, यानी दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय सी एस के वाई ए एम इज प्रेजेंट है, तो सी एस के वाई ए एम इससे डिवाइड कर दीजिए, सी एस के वाई डी एम। तो ये जब एच जी ए एच अपॉन सी एस के वाई डी एम से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो एच जी ए एच सी एस के वाई ए एम, तो ये रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज आर। एंड मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखो यहाँ पे या तो सी एस से सी एस के वाई ए एम, इसका मल्टीप्लाई होगा और इसी का डिवीजन होगा। तो दिस टर्म जो डिवीजन है ये टर्म होगा, दिस इज नोन एज ए आर एंड दिस टर्म इज सी एस के वाई ए एम। मल्टीप्लाई बाई टी आई माइनस टी जी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टी आई माइनस टी जी एंड डी जेड। देन नेक्स्ट टर्म में, क्योंकि अगेन वी हैव इन द मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई द सी एस वाई के एम और ये सब, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सी एस के वाई ए एम एंड डिवाइड बाई सी एस के वाई ए एम। तो जब डिवाइड भी करेंगे सी से, यानी सी एस के वाई ए एम, अब मल्टीप्लाई है यहाँ पे, दिस होल टर्म इज मल्टीप्लाई बाई अगेन हम वी हैव राइट हियर के वाई ए एम एंड वाई आई डैश माइनस वाई आई डैश एंड डी जेड। तो जितने टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, वी कैंसिल आउट ऑल द टर्म्स, कैंसिल आउट ऑल द टर्म, जितना भी टर्म्स कैंसिल आउट होगा वो सब कैंसिल आउट कर दिए। यानी जैसे के वाई ए एम, ये तो यहाँ पे था ही लिखा हुआ था पहले से ही, है ना, तो ये तो बचेगा ही बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, केवल इतना टर्म ये बचेगा, केवल डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन दोनों में करेंगे तो ये तो पूरा टर्म ये कैंसिल आउट, लेकिन ये टर्म्स पूरा का पूरा ऐसे ही लिखा रहेगा जैसे ही लिखा था। एंड देन मल्टीप्लाई ईच टर्म इंटरनल, जैसे इसमें सी एस के वाई ए एम मल्टीप्लाई टी आई एंड आर, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिमिलरली आर सी एस के वाई ए एम इंटू टी जी, और फिर उसको कॉमन ले लीजिए, तो ये इक्वेशन बिकम्स इस टाइप से बन जाएगी, के वाई ए एम, देखो के वाई ए एम, ये टर्म इन द फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट टर्म में भी आएगा एंड दिस टर्म इज इन द सेकंड इक्वेशन, इसलिए दिस होल टर्म इज कॉमन। तो वो कर दी कॉमन लेके, देन यू अरेंज दिस एक्सप्रेशन इज दिस वे, तो ये अरेंजमेंट के बाद ये मिल जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, दीज आर द एंथैल्पीज, क्योंकि दीज आर द एंथैल्पीज ऑफ द गैसेस, ये एंथैल्पी है, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ वेपर गैस मिक्सचर एट इंटरफेस एंड दिस इज एंथैल्पी ऑफ द वेपर गैस मिक्सचर एट बल्क। तो ये बल्क के लिए लिखी हुई है एंथैल्पी, वेपर गैस मिक्सचर का मतलब एयर ही है, क्योंकि एयर को, दिस इज वेपर गैस मिक्सचर, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट भी होगा और एयर तो है ही है जो, तो ये एंथैल्पीज है एट इंटरफेस एंड दिस इज एंथैल्पी एट द बल्क। तो यहाँ पे जो आर, हमने आर सिग्निफाई किया, दिस इज ए स्पेशल टर्म दिखाई कि आर इक्वल टू वन, आर इक्वल टू वन पे ये तब ठीक है कि दिस इज इक्वेशन इज बिकम्स दिस, तब ये इक्वेशन जो हो जाएगी सी एस टी आई प्लस लैम्डा नॉट वाई आई डैश माइनस सी एस टी जी प्लस लैम्डा डॉट वाई डैश। तो ये इक्वेशन तब ये एंथैल्पीज हो जाएंगी अगर आर इक्वल टू वन है। अगर आर की वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि आर इक्वल टू वन पे क्या होगा, दिस आर इक्वल टू वन, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एयर वाटर सिस्टम, क्योंकि तब ये लुईस नंबर इज वन, एंड उस कंडीशन में लुईस नंबर जब वन होगा तो ए एम ए एच जो होगा सिंपली इंटरफेशियल एरिया ऑफ द पैकिंग।
AM जो इंटरफेशियल एरिया for mass transfer or interfacial area for heat transfer, these two are equal and this is equal to the interfacial area of the packet. लेकिन if R equal to 2 अगर ऑब्जर्व करते हैं for air water system, लेकिन ये तब मिलेगा when the liquid flow rate is very low. Otherwise for air water system we have R value near to the 1. ना का ज्यादा होगा ना कम होगा, R near to the 1 होगा. तो क्या होगा, तो ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन को वी कैन राइट इन सिंपली फॉर्म पर. ये एंथैल्पी हमारी हो गई जो हम कह रहे हैं आर इक्वल टू 1 पर. जब ये आर इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये टर्म तो 1 हो जाएगा, है ना. तो ये एंथैल्पी हो जाएगी हमारी इंटरफेस में, है ना. ये एंथैल्पी हमारी हो जाएगी बल्क की. तो ये इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दी गई एच आई माइनस एच डैश. तो के वाई ए एम की जगह ए लिखेंगे, है ना, क्योंकि ए एम इक्वल टू ए एच इक्वल टू ए, तो दिस इज ए एच आई डैश माइनस एच डैश डी जेड. तो इन दिस इक्वेशन मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज यूज्ड विद एंथैल्पी ड्राइविंग फोर्स, है ना. अभी तक हम लोग ने जो भी लिखा है मास ट्रांसफर के लिए रिलेशनशिप वी हैव राइट. जैसे फॉर एग्जांपल मास प्लस लिखा है तो दिस इज मल्टीप्लाई बाय मास ट्रांसफर कोफिशिएंट. मास ट्रांसफर कोफिशिएंट दिस इज मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स. लेकिन अब ये इक्वेशन है क्योंकि दिस इज मल्टीप्लाई विद द एंथैल्पी ड्राइविंग फोर्स. यहाँ पे क्योंकि ये मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, है ना, मल्टीप्लाई बाय द एंथैल्पी ड्राइविंग फोर्स. तो कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन एंड पुट इन दिस इक्वेशन. अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, जो इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन में यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और ये जो फाइनली जीएस डीएच की वैल्यू मिली है दी पुट हियर. पुट करने के बाद जैसे ये इक्वेशन आ जाएगी, जीएस डीएस की वैल्यू पुट कर दी तो ये लिखी हुई है और एलएसीएल की वैल्यू पुट कर दी तो ये लिखा हुआ है. ठीक है. तो ये पुट करने के बाद देन रीअरेंज दिस एक्सप्रेशन. क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया, दिस एक्सप्रेशन. अब our aim is to find out the height of the tower. तो how to evaluate the height of the tower? तो height of the tower के लिए देखो जैसे इन द फिगर ये है दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द ऑपरेटिंग लाइन पे दिस पॉइंट यानी यू पॉइंट जो है ये दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंट द एंथैल्पी of the bulk and their enthalpy of the bulk liquid and the temperature of the bulk, and corresponding this. क्योंकि ये इक्वेशन जो बता रही है, देखो ये इक्वेशन अगर देखें हम, ये ओनली दिस टू, तो ये क्या बता रहा है, देखिए ये टी आई के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी एच डैश एंड टी एल डैश के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी एच आई डैश. नहीं सॉरी, टी आई के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी को, टी आई इज इंटरफेस टेम्परेचर, ये आई लिखा हुआ है, टी आई के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी इज एच आई डैश एंड द टी एल के करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी इज एच डैश. तो ये एच डैश इज एंथैल्पी करस्पॉन्डिंग टू टी एल डैश एंड ये एंथैल्पी एट द इंटरफेस. तो ये इसके हिसाब से इन द ग्राफ देखेंगे तो ये पॉइंट, है ना, दिस पॉइंट यू पॉइंट रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ऑफ द लिक्विड एंड देयर टेम्परेचर TL, ये इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग. एंड जो सेकंड पॉइंट है वो ये पॉइंट है T पॉइंट, है ना, विच रिप्रेजेंट द एंथैल्पी एट द इंटरफेस. तो इंटरफेस एट द इंटरफेस TI HI, तो ये पॉइंट. और जो एंथैल्पी ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस केस जो लिखा है अभी हम लोग ने इक्वेशंस में ही कि दिस इज HI डैश माइनस एच डैश. तो वो ये है, ये लाइन रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एच डैश को, है ना, एंथैल्पी, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एच आई डैश. तो ये जो लाइन है दिस लाइन एच आई डैश, तो ये जो लाइन है दिस रिप्रेजेंट द एंथैल्पी ड्राइविंग फोर्स. तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है दिस आर टी यू या जैसे भी लें, या आर टी यू या यू आर टी जो भी लेना,
ये ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल यू कैन मेक फॉर, क्योंकि दिस ट्राइंगल रिप्रेजेंट द एंथैल्पी चेंज इन वन डिफरेंशियल सेक्शन, है ना। ऐसे यू कैन राइट, यू कैन ड्रॉ द नंबर ऑफ एंथैल्पी ट्राइंगल विद इन दिस, जितना भी रीजन है विद इन द दिस रीजन, इस रीजन में जितने भी बनेंगे वो उनको ड्रॉ कर देंगे, जितने भी बनते हैं उससे वी कैन फाइंड आउट द एंथैल्पीज एट डिफरेंट लोकेशंस इन द टावर। जितने भी टर्म्स बनेंगे उससे, जैसे एक पोजीशन इन द ऑपरेटर्स जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट टू है ऑन द ऑपरेटिंग लाइन, पॉइंट टी हमने बताया कि रिप्रेजेंट द इंटरफेस कंडीशन, है ना। एंड डिस्टेंस ये है एंथैल्पी ड्राइविंग फोर्स विद इन द गैस फेज। तो बाय मेकिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल आरटीयू जो हम डिस्कस कर रहे थे एट सेवरल प्लेस अलोंग द ऑपरेटिंग लाइन, इस लाइन के अलोंग द जो ऑपरेटिंग लाइन ये है, जैसे ये है ग्राफ पेपर, ये हमारा है, दिस इज इक्विलिब्रियम कर्व एंड दिस इज ऑपरेटिंग लाइन। तो ऑपरेटिंग लाइन के ये हमने एक पहला बना दिया, ये ट्रायंगल, है ना। ऐसे वी कैन ड्रॉ द सेवरल ट्रायंगल एंड फाइंड आउट द एंथैल्पीज एट डिफरेंट लोकेशन, और उसको अगर वो हमें पता चल जाए एंड देन पता चल जाएंगे फ्रॉम दिस ग्राफ, एंड उसको पता करने के बाद देन वी हैव कंसीडर कि के वाई इज ए कांस्टेंट, क्योंकि दिस इज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इन द सेवरल ऑपरेशन वी हैव कंसीडर कि दिस इज कांस्टेंट, लेकिन एक्चुअल में रियल में दिस विल वेरी, क्योंकि जैसे जैसे चेंजेस होगा कंसंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स में वैसे वैसे ये चेंज होता रहता है। लेकिन वी हैव कंसीडर्ड कि देयर वेरिएशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो यही कि अज्यूमिंग दिस इज अ कांस्टेंट, तो क्या करें देन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को यानी कि ये जो लिखी हुई इक्वेशन को इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। अब चाहे देखो, ये इस इक्वेशन को अगर इस दो टर्म से लेके करते हैं तो यानी वी हैव कंसीडर्ड एंथैल्पी एंड मास ट्रांसफर बोथ सेम टाइम, तो ये हमारी हो जाएगी साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर इक्वेशन। सिमिलरली अगर हमें उसके बेसिस पे लिखेंगे हीट ट्रांसफर के बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट, तो ये फिर इन दोनों को बैलेंस कर दें, इन दोनों को लेके फिर इंटीग्रेट कर दें तो यू कैन फाइंड आउट। तो वो अगर इन दोनों को लेते हैं तो साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर कंसीडर करते हुए वी कैन फाइंड आउट द होल टावर डिजाइन, यानी होल टावर डिजाइन मींस देयर साइज एज वेल एज, यानी साइज का मतलब हो जाता है देयर डायमीटर एज वेल एज द हाइट। तो हम मेन जो इम्पोर्टेंट फॉर द आवर केस इज हाइट, तो वो यहाँ से, तो इस यानी कि फर्स्ट टू टर्म्स व्हेन यू आर कंसीडरिंग, तो उसको अरेंज करने के बाद यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, जी एस डैश डी एच, एंड द सेकंड टर्म जो लिखा हुआ है के वाई ए एच आई स्टार, एच आई डैश, यानी एच आई डैश माइनस एच डैश एंड डी जेड, इसी को रीअरेंज कर लिया बस। इसी को रीअरेंज करने के बाद देन इंटीग्रेट ओवर द लिमिट की एंथैल्पी एट द इनलेट एंड एंथैल्पी एट द आउटलेट, ये इनलेट का एंथैल्पी एट द आउटलेट एंथैल्पी एच वन डैश एंड एच टू डैश एंड करस्पॉन्डिंग जो ओवरऑल हाइट ऑफ द टावर्स, तो ये इसको कर देंगे। एंड के वाई एस वी हैव टेकन एज अ कांस्टेंट तो टेक आउटसाइड, और जी एस डैश तो हम मानते हैं कि कांस्टेंट, क्योंकि वेपर गैस मिक्सचर का जो मास फ्लो रेट है वो वेरी नहीं करेगा, तो ये टेक आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन, तो ये इक्वेशन यू विल गेट। तो आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल गेट दिस, ये इंटीग्रेशन यू कैन इंटीग्रेट दिस, तो इंटीग्रल evaluated graphically, क्योंकि you can't find out the in this integration manually, क्योंकि यहाँ पे the इंटीग्रल ये दिस एंथैल्पी ये लिखी हुई है इंटरफेस पे, है ना, एंथैल्पी एट इंटरफेस एट सेवरल लोकेशन, तो ये सेवरल लोकेशन पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी एंड देन फाइंड, तो ये हम ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं बट वी कांट फाइंड आउट द मैनुअली। तो इसको ग्राफिकली यू कैन इवेल्युएट
और वो भी जैसे द एंथैल्पी इंटीग्रल ऑफ द अबव इक्वेशन सम टाइम वी कैन इंटरप्रेट, इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है, इंटरप्रेट कि इस टाइप से, दिस इज H2 डैश माइनस H1 डैश डिवाइड बाई ये है H आई डैश माइनस H डैश, ये एवरेज, यानी कि दिस वी कैन राइट एज एवरेज, क्योंकि ये हम एवरेज निकलेगा, तो ये एच आई डैश माइनस H डैश एवरेज, क्योंकि एच डैश एट ए डिफरेंट लोकेशन ऑन द ऑपरेटिंग लाइन एंड दिस इज एट द इक्विलिब्रियम लाइन, ये एच आई जो होगा इंटरफेस की कंपोजिशन एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो उसका एवरेज जो भी निकलेगा वो, तो दिस represent the number of times the average driving force divides into the enthalpy change. तो जो overall enthalpy change है, ये enthalpy change in the tower, वो H2 minus H2 dash minus H1 dash, this will be divided by this average value, यानी number of times, जितने times से divide होगी, क्योंकि ये इसकी ये एवरेज वैल्यूज है, क्योंकि कई ये अलग अलग होती जाएगी, जैसे इस ग्राफ में दिस इज द डिफरेंस है ना एट दिस पॉइंट, लेकिन अगर यही ट्रायंगल यू कैन प्लॉट फ्रॉम दिस पॉइंट अनदर पॉइंट से, तो वो ट्रायंगल जैसे ये पॉइंट ले लिया हमने है ना, अब ये ट्रायंगल ये बनेगा, तो ये एंथैल्पी डिफरेंस ये होगा समथिंग डिफरेंट, तो वो उन सबका एवरेज है। तो डिवाइड जितने नंबर ऑफ टाइम्स दिस विल डिवाइडेड बाय द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज, तो वो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, और दिस मेजर द डिफिकल्टी ऑफ एंथैल्पी ट्रांसफर, यानी कि दिस मेजर द ये होल टर्म मेजर द डिफिकल्टी ऑफ एंथैल्पी ट्रांसफर एंड दिस इज नोन एज अ गैस एंथैल्पी ट्रांसफर यूनिट। जैसे यू हैव हर्ड द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट है ना, एनओजी और एनटीओजी ये सब पढ़ा है, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, तो वैसे ये है कि गैस एंथैल्पी ट्रांसफर यूनिट एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एनटीजी, तो ये है नंबर ऑफ ट्रांसफर, तो इसको एनटीजी लिख सकते हैं, वी कैन राइट है एनटीजी, तो ये हो जाएगा दिस टर्म इज एनटीजी है ना, ये एनटीजी हो गया। इस टर्म को के वाई अपॉन ए जी एस डैश है ना, ये लिख दिया जाता है, इसको ये लिखते हैं इसका रेसिप्रोकल, यानी कि अगर इसको ऐसे लिखें इस साइड इक्वेशन में, तो जी एस डैश अपॉन के वाई ए एंड दिस इज इक्वल टू द जेड है ना, इसी को अरेंज कर दिया के वाई ए, यानी जी एस डैश इन द टेकन टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड के वाई डिवाइड डिनोमिनेटर में, तो ये देखो मास ट्रांसफर यानी mass transfer GS just represent the mass transfer in the upper gas mixture and this is a mass transfer multiplied by the interfacial surface area. So this represent the height of the transfer unit, जितना भी एंथैल्पी ट्रांसफर यूनिट में ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं HTG से है ना, ये बताता है हाइट ऑफ गैस एंथैल्पी ट्रांसफर यूनिट, हाइट ऑफ द गैस एंथैल्पी ट्रांसफर यूनिट, तो वो ये है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एट HTG एंड दिस इज NTG, जैसे यू सी इन द पैक टावर डिजाइन द डिस्टिलेशन पार्ट, तो वहां पे HOG और ये NOG लिखते, तो वैसे सिमिलरली ये है, तो ये HTG एंड NTG, तो ये एंथैल्पी के टर्म में कि गैस एंथैल्पी ट्रांसफर यूनिट ही बताता है एंड दिस इज नंबर ऑफ गैस एंथैल्पी ट्रांसफर यूनिट है ना, ये बताता है कि कितनी डिफिकल्टी होती है एंथैल्पी ट्रांसफर में इन ईच यूनिट्स में, यूनिट का मतलब कि हर स्टेज में जो एंथैल्पी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इंटरफेस पे, वो एंथैल्पी का ट्रांसफर में कितनी डिफिकल्टी वो इससे पता चलता है। तो HTG इज फ्रिक्वेंटली प्रेफर्ड ओवर KYA एज अ मेजर ऑफ पैकिंग परफॉर्मेंस, यानी के वाई ए, जैसे के वाई इज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई, यानी ये दिस मास ट्रांसफर कोफिशिएंट
is used when we write the conservation in terms of humidity, क्योंकि के वाई ए है, y यहाँ पे this suffix represent when we write the conservation in terms of humidity, तभी ये के वाई यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि के वाई कहीं भी यूज कर दे, तो के वाई जहाँ पे ये होगा मास ट्रांसफर कंसंट्रेशन डिफरेंस को वी कैन रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ये इसके कंपैरेटिव एच टी जी इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू मेजर द पैकिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि ये लेस डिपेंडेंट है अपॉन फ्लो रेट्स ऑफ फ्लूइड, जो भी है फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड एंड द, क्योंकि इसकी सिंपल डायमेंशन ऑफ लेंथ है। क्योंकि जब इसकी डायमेंशन चेक करें तो जीएस की डायमेंशन और इन सब की डायमेंशन जब रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो ए जो होगा, ए जो होता है इंटरफेशियल एरिया, ये एरिया होता है मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब। और के इज अ मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट वो भी है ह्यूमिडिटी के टर्म में। तो आप समझ जाओ कि ये जो होगा फ्लक्स, जैसे फ्लक्स हम लिखते हैं एन एंड, तो के वाई जो होगा यहाँ पे ह्यूमिडिटी डिफरेंस होगा। और आपको पता है ह्यूमिडिटी की कोई ह्यूमिडिटी जो होती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो जो सीधे सीधे एन की जो यूनिट होगी सेम होगी के वाई की यूनिट। तो एन की यूनिट हमारी होती है, जैसे अगर मास के टर्म में लिख रहे हैं तो मास की यूनिट हो गई यानी केजी, जैसे मोल पर मीटर क्यूब पर सेकंड लिखते हैं तो ये केजी पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ये होगी इसकी। तो ये इस टाइप से होगा, है ना। और जीएस क्या होगा, जीएस हमारा मास केजी पर सेकंड, है ना। ये जब पुट करोगे ऑल दीज वैल्यूज हियर, यानी जीएस डिवाइड बाय दिस, है ना, केजी पर मीटर स्क्वायर सेकंड मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, ये जब पुट करेंगे सब तो देखो क्या आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये मास फ्लो रेट है तो ये केजी पर सेकंड में, एंड दिस इज, तो यूनिट हमारी आ जाएगी ये इंटरफेशियल अरिथमेटिक, यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर भी वो। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा ये इससे, और ये बचेगी यूनिट केवल 1/मीटर, तो ये मीटर ऊपर आ जाएगा। तो ये ओवरऑल की जो यूनिट होगी एच टी जी की, वो हाइट की यूनिट होगी। इसीलिए दिस इज नोन एज ए रिप्रेजेंट द सिंपल डायमेंशन ऑफ लेंथ, इसीलिए एच टी जी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ जी एस के वाई। हाउएवर द ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स, अगर बात करें ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि दिस इज ड्राइविंग फोर्स विद इन सम डिफरेंशियल पार्ट, लेकिन अगर ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स के टर्म में लिखेंगे तो देन बल्क फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर यूज्ड, तो वहां पे एंटी ओजी यूज हो जाएगा, है ना। इन प्लेस ऑफ एंटी जी वी यूज ए एंटी ओजी, है ना। एंड ये जो लिखेंगे एच आई ना लिख के फिर ये एच इक्विलिब्रियम लिखेंगे, यानी एच डैश स्टार, ये एच डैश स्टार लिखा है ये वो एच डैश स्टार। तो स्टार मीन्स यानी एंथैल्पी एट द इक्विलिब्रियम, तो वो यानी कि जब, तो यहाँ पे एच आई की जगह एच आई डैश स्टार हो जाएगा। एंड सिमिलरली दिस एच टी जी की जगह वी कैन राइज एच टी ओ जी। तो ये ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स के टर्म में व्हेन यू राइटिंग, तो जेड जो होगा वह एच टी ओ जी मल्टीप्लाई बाई एन टी ओ जी, ये हो जाएगा द ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स के रूप में, है ना। तो दिस इज द इक्वेशन यूज टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द हाइट एंड नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट फॉर एंथैल्पी चेंज के लिए, जितने भी नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, तो ये टोटल जो होंगे, जैसे नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट है जो
गैस एंथैल्पी ट्रांसफर यूनिट है, मल्टीप्लाई बाई द हाइट ऑफ द गैस एंथैल्पी ट्रांसफर यूनिट। यानी कि एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये टावर है, इस टावर में ये हमने एक सेक्शन लिया, इस सेक्शन में हाँ, तो वह जितनी नंबर ऑफ ग्रास, वो जो हमने प्लॉट किया था इन द ग्राफ, इक्विलिब्रियम कर्व एंड देन ऑपरेटिंग लाइन, तो इसमें जितनी आपकी वो बनेंगे ट्रायंगल, है ना, जितने जैसे हमारे ट्रायंगल बनते थे डिस्प्लेसमेंट कॉलम में, सिमिलरली हियर नंबर ऑफ ट्रायंगल विल डिसाइड कि जितने बनेंगे, वो एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट द वन वन यूनिट, यानी वन यूनिट फॉर गैस एंथैल्पी ट्रांसफर, एंड इसकी जो हाइट होगी, दिस विल रिप्रेजेंटेड वन गैस एंथैल्पी ट्रांसफर यूनिट। और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ दिस ट्राइंगल्स, तो वो बताएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ हाइट्स, टोटल हाइट कितनी होगी कॉलम टावर की, तो वो उससे निकालेंगे सिमिलरली जैसे पैक कॉलम में करते हैं। तो दिस इज द कूलिंग टावर। देन जो नेक्स्ट जो है, दिस इज dehumidification। ये अगेन है, और कैन एडियाबैटिक ऑपरेशन ऑपरेट, तो यहाँ dehumidification ऑफ एयर वाटर वेपर, यानी दिस ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू मेक ए एयर फॉर ड्रायर, है ना। ड्रायर मीन्स यानी ड्राइंग ऑपरेशंस के लिए, जहाँ पे वी आर सॉलिडिफाई द स्लरी, तो उस केस में वहाँ पे भी dehumidify the air and this is used, and similarly we can dehumidify the air in the AC when we use in the rainy season। तो वही सेम काम करता है कि यानी वार्म वेपर गैस मिक्सचर व्हेन कांटेक्ट विद द कोल्ड लिक्विड, तो क्या होगा, कोल्ड लिक्विड में वेपर, वार्म वेपर गैस मिक्सचर है, तो कांटेक्ट विद द कोल्ड लिक्विड, तो होगा क्या, heat will transfer from vapor gas mixture to the liquid, और उसके साथ साथ क्या होगा, जो वेपर्स होंगे इन द वार्म वेपर गैस में, वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये है वेपर गैस मिक्सचर, है ना, ये हॉट भी है, तो क्या होगा, और यहाँ कोल्ड लिक्विड है, तो क्या होगा, ये वेपर गैस मिक्सचर से, यानी कि जो कुछ सम अमाउंट ऑफ द वेपर इज गोइंग टू द कोल्ड लिक्विड, है ना। तो जब ये सम अमाउंट ऑफ लिक्विड वेपर विल गोज टू द कोल्ड लिक्विड, तो ये क्या होगा, वेपर गैस मिक्सचर में डीह्यूमिडिफाई, तो इसमें से ह्यूमिडिटी वैल्यू लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी ऑफ द गैसेस, क्योंकि इनिशियली क्या होगी, वार्म वेपर की ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, एंड देन एट द गैस लिक्विड इंटरफेस यहाँ पे, लेकिन जब इससे सम अमाउंट ऑफ विल ट्रांसफर, और वो है ना, क्योंकि हीट भी ट्रांसफर हो रही है, तो डिफ्यूज, तो गैस विल बी dehumidified। This is similar operation in the AC। So here the sensible heat can be transferred as a result of temperature difference within the system। The operating line on the gas enthalpy liquid temperature graph will be above the equilibrium curve। Means क्योंकि अब इस केस में क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी will be higher initially, and the gas, when the gas will be pass over the cold liquid, तो क्या होगा, the humidity will drop। तो ये जो ऑपरेटिंग लाइन होगी, जैसे प्रीवियस केस में हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस केस में कूलिंग वाटर बना रहे थे विद एयर, तो उसमें क्या हो रहा था कि वाटर का क्योंकि एयर से हम कूल कर रहे थे, तो सम अमाउंट ऑफ वाटर इज गोज टू द लिक्विड, यानी वहां पे ह्यूमिडिटी बढ़ रही थी वाटर की, तो इसलिए ऑपरेटिंग लाइन यहाँ पे थी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो ऑपरेटिंग, तो ये, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ड्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग लाइन जो होगी अबव देन द इक्विलिब्रियम कर्व, यहाँ पे क्या है कि इक्विलिब्रियम कर्व से लोअर होगा, यहाँ प्रीवियस केस में कूलिंग वाटर सिस्टम। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए
कि यहाँ पे जो चेंज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इनिशियली द ह्यूमिडिटी ऑफ दिस वेपर गैस मिक्सचर इज दिस एंड इक्विलिब्रियम वैल्यू उससे ज्यादा है ना, इक्विलिब्रियम करस्पॉन्डिंग दिस इक्विलिब्रियम इज दिस मच वैल्यू, तो क्या होगा, तभी वेपर विल ट्रांसफर फ्रॉम द वेपर गैस मिक्सचर टू द कोल्ड लिक्विड। अगर ये कम होगा, इक्विलिब्रियम वैल्यूज अगर कम मतलब ज्यादा होगी इससे, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ह्यूमिडिटी है इसकी ह्यूमिडिटी इक्विलिब्रियम वैल्यू से, यानी कि एंथैल्पी भी बात करें तो एंथैल्पी भी इसकी ज्यादा है इक्विलिब्रियम वैल्यू से, तो यानी कि क्या होगा, फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी इक्विलिब्रियम की कम है कंपेयर टू द करंट, तो इसलिए एंथैल्पी ट्रांसफर होगी, तो इसलिए ह्यूमिडिटी भी ट्रांसफर होगी। लेकिन यहाँ वाले केस में, हमारे केस में क्या हो रहा था कि हम जो इनिशियली ह्यूमिडिटी थी एयर की, है ना, उसकी समय एंथैल्पी थी वेपर गैस मिक्सचर की, ये एंथैल्पी जब कांटेक्ट में आ रही थी तो उसमें वाटर कंटेंट जा रहा था, तो उसकी एंथैल्पी भी बढ़ रही थी, तो ये एंथैल्पी बढ़ रही थी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे उसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस, इसलिए इस केस में ऑपरेटिंग लाइन लोअर होगी, इस केस में अबव होगी, तो इसीलिए वो कह रहा है द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कर्व द ड्राइविंग फोर्स इज दिस एंड इक्वेशन ऑफ एनटीओजी कैन बी यूज्ड विद द ड्राइविंग फोर्स। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लाइन गैस एंथैल्पी की अबव द इक्विलिब्रियम कर्व होगी, क्योंकि यहाँ पे डिह्यूमिडिफिकेशन दिस इज अपोजिट टू द ह्यूमिडिफिकेशन ऑपरेशन। तो ह्यूमिडिफिकेशन जब होगा तो याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग लाइन ऑलवेज लोअर देन द इक्विलिब्रियम लाइन, और जब डिह्यूमिडिफिकेशन होगा तो ऑपरेटिंग लाइन अबव देन द इक्विलिब्रियम लाइन, क्योंकि तभी हम डिह्यूमिडिफिकेशन कर पाएंगे जब उसकी ह्यूमिडिटी की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू, तभी वो ह्यूमिडिफाई ही होगा, डिह्यूमिडिफाई होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं डिह्यूमिडिफाई। ठीक है, तो आई विल स्टॉप हियर, और नेक्स्ट टाइम पे वी विल डिस्कस दिस रिसर्कुलेटिंग लिक्विड गैस ह्यूमिडिफिकेशन कूलिंग सिस्टम।